2 કલાકથી આ સભાગૃહની અંદર બેસીને જેમને સન્માનવા, જેને આદર કરવા, જેમની આ આટલા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, ક્ષણ હવે આવી ચૂકી છે, ત્યારે આપ સૌને મારે વિનંતી છે કે પોતપોતાની જગ્યાને ના છોડે, વ્યવસ્થા જાળવી રાખે અને ત્યાં જ વ્યવસ્થા જાળવી રાખીને આપણે એમને ઊભા થઈને અને કોંગ્રેસના જયકારાથી રાહુલ ગાંધીનું અમદાવાદની આ પાવન ધરતી પૂજ મહાત્મા ગાંધીને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની આ જન્મભૂમિ ઉપર આપણા આદરણીય સન્માનનીય નેતા રાહુલ ગાંધીજીનું આપણે ભાવભીનું સ્વાગત કરીશું। તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે હોલને ગજવી દઈશું એવી આપ સૌને મારી હાર્દિક અપીલ છે। હવે ક્ષણ આપણી વચ્ચે આવી રહી છે ત્યારે આપણે સૌ આપણી જગ્યા ઉપર ઊભા રહી જાય, વ્યવસ્થાને જાળવે અને આપણે સૌ એમને ખૂબ જ આપણી વચ્ચે જયઘોષ સાથે આપણે એમનું સન્માન કરીશું। અને આજે મહિલા દિવસ પણ છે, મહિલાઓ જ્યારે એમનું સ્વાગત કરી રહી હોય, મોટી સંખ્યામાં મહિલા આવ્યા હોય, તમામને વિનંતી કે પોતપોતાની જગ્યા ઉપર વ્યવસ્થા જાળવી રાખે। આપણા નેતા રાહુલ ગાંધીજી, આદરણીય લોકસભાના વિપક્ષના નેતા, આ રાષ્ટ્રના જનનાયક, હિન્દુસ્તાનમાં કન્યાકુમારીથી કાશ્મીર સુધી લોકોના હક અને અધિકાર માટે જેમને જે ઘોષ કર્યો છે એવા રાહુલ ગાંધીજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી રાહુલ ગાંધી तुम आगे बढ़ो, राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो, राहुल गांधी संघर्ष करो, आवाज दो, आवाज दो। હવે આપણી વચ્ચે એ ઘડી આવી ચૂકી છે જેનું આપણે રાહ જોઈ રહ્યા હતા। હવે હું અમદાવાદ કોર્પોરેશનના વિપક્ષના નેતા ભાઈ શહેજાદ ખાનને વિનંતી કરીશ કે જે મોમેન્ટથી એમનું સ્વાગત કરવાનું છે અને હું પોતે શહેર કોંગ્રેસના પ્રમુખ તરીકે એમનું સ્વાગત કરવા જઈ રહ્યા છે। બરાબર જોશ છે બધાનું, મારી સાથે જોરથી જરા બોલાવશો। રાહુલ ગાંધી, રાહુલ ગાંધી। આપણે ખૂબ ખુશકિસ્મત છીએ કે આપણા નેતા કાર્યકર્તાઓ સાથે દિલથી ગઈકાલે મળ્યા। આપણા સૌના વતી રાહુલ ગાંધીજીનું સ્વાગત કરું છું અને હું વિનંતી કરીશ, આજે મહિલા દિવસ છે તો સૌથી પહેલા આપણા સાંસદ ગેનીબેન, આપણા સાંસદ આદરણીય ગેનીબેન ઠાકોરને વિનંતી કરું છું કે આવે અને મહિલા દિવસ છે તો ઓપનિંગ સ્પીચ મહિલા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરથી આપણે શરૂઆત કરીએ। राहुल गांधी, राहुल जी तुम आगे बढ़ो, राहुल जी तुम आगे बढ़ो। सोनिया गांधी आज लोकसभा विरोध पक्षना नेता और अपना देशना नेता, सौना नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक जी, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति प्रमुख आदरणीय शक्ति सिंह गोयल साहेब, महिला कांग्रेस प्रमुख बहन श्री गीताबेन, एआईसीसी तमाम प्रभारी श्रीओ, विरोध पक्ष नेता अमित भाई चावड़ा साहेब, गुजरात प्रदेश समिति माजी प्रमुख श्रीओ, स्टेज पर विराजमान कांग्रेस सौ अग्रगणी आगेवानो, वडीलो, आप सौ मोटी संख्या में पधारेला कांग्रेस सौ योद्धाओ। आज आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है त्यारे समग्र विश्वनी तमाम महिलाओं ने आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाओं पाठवू छू। साथे साथे आज बाबा साहेब आंबेडकर ने जे आपणाने बंधारणीय हको आप्या ए बंधारणीय हको जारे आपणे महिलाओने एना थकी अनेक क्षेत्रनी अंदर आगळ वधवा माटेनी तक मळी छे, त्यारे पंचायती राज में ए वखतना वडाप्रधान
રાજીવજીએ 33% મહિલાઓને અનામત આપીને લોકલ બોડીમાં ચૂંટણીઓ લડવા માટેનો મહિલાઓને મોકો આપ્યો અને એના હિસાબે આજે દેશમાં સૌથી વધારે મહિલા સરપંચો, તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, નગરપાલિકા અને એમાંથી આગળ વધીને જનરલ સીટો ઉપર ધારાસભ્ય અને સંસદ સભ્ય સુધી આ દેશની મહિલાઓ પહોંચી છે. ત્યારે એ કોંગ્રેસ પાર્ટીના એક મહિલા સભ્ય તરીકે, સંસદ સભ્ય તરીકે નેતાઓનો કોંગ્રેસ પાર્ટીનો આભાર માનવો જોઈએ કે આ કોંગ્રેસે મહિલાઓને ગૌરવ અપાવવા માટે કરીને દેશના પ્રથમ વડાપ્રધાન આપ્યા, પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ આપ્યા, પ્રથમ લોકસભાના સ્પીકર આપ્યા અને વિધાનસભામાં અને લોકસભામાં મહિલાઓને 33% મળે એના માટે મનમોહનસિંહજીની સરકાર વખતે લોકસભાની અંદર એ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ એનું બિલ પસાર કર્યું. ત્યારે જે ક્ષેત્રમાં છો એ ક્ષેત્રમાં મહિલાઓને વિનંતી કરું છું કે પોતે સ્વનિર્ભર બનીને જાતે વહીવટ કરવા સક્ષમ બને. જે મહિલાઓ કચડાયેલી છે, જ્યાં ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મહિલાઓ ક્યાંક ને ક્યાંક મહિલાઓને આર્થિક રીતે અને રાજકીય રીતે આગળ વધારવા માટે ચૂંટાયેલી જે મહિલાઓ છે એ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં એમને મદદ કરીને આપણે કોંગ્રેસ પાર્ટીનું જે કર્તવ્ય છે કે મહિલા સશક્તિકરણનું ઉદાહરણ જે પૂરું પાડવાનું છે એમાં મહિલા કોંગ્રેસ અગ્રેસિવ રહીને કામ કરીને એ મહિલાઓના કામ કરવામાં ખૂબ એમને પ્રેરણા આપે એવી પૂર્ણ આજના તબક્કે તમારા બધા પાસે અપેક્ષા રાખું છું. એક મહિલા સાંસદ તરીકે પહેલી વખત જ્યારે રાહુલજીની હાજરીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસની ઉજવણી કરવાને આપ સૌની શુભેચ્છાઓ પાઠવવા માટેનો મોકો આપ્યો એ બદલ કોંગ્રેસ પાર્ટીનો અને આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું. સન્માનનીય શક્તિસિંહજી. આપણે જોશ ઘણો બધો છે, પણ અંદરો અંદર વાતો નહીં કરીએ અને શાંતિ રાખીશું તો મજા આવશે ને? હા કે ના? તો મારી વિનંતી છે, ખુરશીઓ ઓછી પડી છે, હું સમજી શકું છું. કાર્યકર્તા મિત્રોને ઊભું રહેવું પડ્યું છે. જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં બેસીને શાંતિથી સાંભળીએ. હું વિનંતી કરીશ કોંગ્રેસ વિધાનસભા પક્ષના નેતા માનનીય અમિતભાઈ ચાવડાને કે આવે અને સંબોધન કરે. આપણા સૌના નેતા, દેશના સામાન્ય લોકોનો અવાજ, લોકસભાના વિપક્ષના નેતા આદરણીય રાહુલ ગાંધીજી, ગુજરાત કોંગ્રેસના સંગઠન પ્રભારી આદરણીય મુકુલ વાસનિકજી, પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના આપણા પ્રમુખ આદરણીય શક્તિસિંહભાઈ, પૂર્વ પ્રમુખશ્રીઓ આદરણીય ભરતસિંહભાઈ, આદરણીય સિદ્ધાર્થભાઈ, આદરણીય જગદીશભાઈ, આપણા એઆઈસીસીના ચારેવ સેક્રેટરીશ્રીઓ, મંચ પર બિરાજમાન કોંગ્રેસના તમામ આપણા વરિષ્ઠ આગેવાનો, તે 30 વર્ષથી સરકાર નહીં હોવા છતાં આ સરકાર સામે ઝઝૂમતા સંઘર્ષ કરતા એવા કોંગ્રેસ પરિવારના તમામ મારા વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો, યુવાન સાથીઓને સલામ કરું છું. રાહુલજી જે બબ્બર શેરની વાત કરે એવા બબ્બર શેર અહીંયા બેઠા છે અને એવા જ ગઈકાલે જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખશ્રીઓ, તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખશ્રીઓ અને પક્ષના વરિષ્ઠ આગેવાનો સાથે રાહુલજીએ ખૂબ વિગતવાર સંવાદ કર્યો છે. અને આ તમામ સંવાદનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ કોઈ હોય તો છેલ્લા 30 વર્ષથી રાજ્યમાં જે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કુશાસન ચાલે છે, આ રાજ્યમાં ખેડૂતો પરેશાન છે, યુવાનો બેરોજગાર છે, મહિલાઓ પર રોજ અત્યાચાર થઈ રહ્યા છે, નાના વેપારીઓના ધંધા વેપાર ચોપાટ થઈ રહ્યા છે, એ ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, બધા જ ધંધા વેપારમાં મંદી ચાલી રહી છે, દારૂ, જુગાર, ડ્રગ્સની બધી વધી રહી છે. ત્યારે ગુજરાતના યુવાનોને ભવિષ્ય ધૂંધળું લાગવાને કારણે ક્યાંક અમેરિકા પેલા
ડંકી પ્રોજેક્ટમાં જવા માટે મજબૂર છે ને ત્યાંથી હાથકડીઓ પહેરાઈને પાછા લાવવામાં આવે છે. મારે આજે આપણે રાહુલજીને સાંભળવા છે, વધારે વાત નથી કહેવી, પણ આપ સૌની પાસેથી એક જ અપેક્ષા છે કે રાહુલજી દેશની પાર્લામેન્ટમાં એમ કહેતા હોય કે આ ગુજરાતની ધરતી જે ગાંધી સરદારની ધરતી છે એના પરથી કોંગ્રેસ તમને હરાવશે. એ ખાલી આ સ્ટેટના નેતાઓના ભરોસે નહોતું કીધું, પણ અહીં બેઠેલા કાર્યકરો આગેવાનોના ભરોસે કીધું છે. મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે શું આપણે આ રાહુલજીની ચેલેન્જ સ્વીકારવા માટે તૈયાર છે? હાથ ઊંચા કરીને કહો કે ચેલેન્જ સ્વીકારવા તૈયાર છે. કોંગ્રેસનો કાર્યકર મારા તમારા સહિત બધા જ લોકો જો આવતા 3 વર્ષ રસ્તા પર ઉતરીશું, લાઠી ખાવાની થાય તો લાઠી ખાઈશું, જેલમાં જવાનું થાય તો જેલમાં જઈશું, તો આજે ગુજરાતની जनता નક્કી કરીને બેઠી છે કે અમારે આ લોકોને ઘર ભેગા કરવા છે, અમારે પરિવર્તન લાવવું છે, પણ એના માટે આપણે સક્ષમ બનવું પડશે. આપણે લોકોને વિશ્વાસ અપાવવો પડશે કે તમારા વતી લડવા માટે કોંગ્રેસ તૈયાર છે, કોંગ્રેસનો આગેવાન તૈયાર છે. અને નેતા રાહુલજીએ તો ગઈકાલે એટલે સુધી કીધું છે કે તમે બધા તૈયારી કરો, તમારા સુખમાં દુઃખમાં બધા જ સંઘર્ષમાં આખી ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ પાર્ટીના આપણા નેતા જોડે રહેવાના છે. જો એમની કટિબદ્ધતા હોય, એ અહીંયા આગળ આવીને જો આપણી વાત સાંભળતા હોય તો આપણે પણ લોકો વચ્ચે જઈ અને એમની આ વાત છે, વિચાર છે, એમનો સંદેશ છે, એને घर घर સુધી લઈ જવી आप સૌને ખાસ વિનંતી કરું છું. मैं राहुल जी का भी आभारी हूँ कि सर ये संघर्ष के समय में जो हमारे नेता कार्यकर्ता ये भाजपा के जोर जुलम अत्याचार के सामने भी कांग्रेस का तिरंगा झंडा लेके संघर्ष कर रहे हैं, आप उन सभी संघर्ष के साथियों को हौसला देने आए हैं, उनको एक नई दिशा देने आए हैं. हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको भी आश्वस्त करते हैं कि आने वाले 3 साल में ऐसी लड़ाई लड़के दिखाएंगे कि ये भाजपा की पूरी सरकार को यहीं गुजरात से उखाड़ के फेंकेंगे. यही विश्वास के साथ आपका भी धन्यवाद. अब हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और गुजरात के प्रभारी सांसद मुकुल वासनिक जी हमको संबोधन करेंगे. मंच पर बैठे सभी नेतागण और आप सभी की ओर से मैं दिल की गहराइयों से यहां पर हमारे नेता राहुल गांधी जी का स्वागत करता हूं. कल राहुल गांधी जी गुजरात की धरती पर पधारे और एक नई ऊर्जा का संचार गुजरात के तमाम कांग्रेस के साथियों को अब नजर आने लगा है. यहां से एक नई शुरुआत हमें कांग्रेस को जड़ों तक मजबूत करने की शुरुआत करनी है. पिछले कुछ सालों से देश और प्रदेश में एक अराजकता का और एक अन्याय का सिलसिला बना हुआ है. इस अन्याय और अराजकता के खिलाफ राहुल गांधी जी ने एक जंग छेड़ दी है. यहां गुजरात में पिछले कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. यहां पर महिलाओं पर बलात्कार, यहां निर्दोष लोगों के घरों को जमीन दोस्त करने का सिलसिला, यहां के नौजवानों की बेरोजगारी, यहां का गरीब, यहां का मध्यम वर्गीय पूरी तरह से प्रताड़ित हो चुका है. भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष के नेता ये आज भारत के संविधान में जो भारत की परिकल्पना करी है उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं. हम उसका मुकाबला करने के लिए अब तैयार है. जो जान की बाजी लगाता है वही आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है. और मैं आपसे यहां पर अनुरोध करने आया हूं, राहुल गांधी जी हमारा नेतृत्व करने के लिए चल पड़े हैं. हम भी अपनी जान की बाजी लगाने के लिए
अब तैयार हो जाए। किसी ने कहा है, शहीदों की वतन की कब्र से ये आवाज आई, वही मिले हमसे आकर जो अपनी जान पर खेलते हैं। उधर दुनिया की राहत है, इधर लुत्फ शहादत है। ये सौदा है तेरे आगे, तू जो चाहे वही ले ले। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक वक्त जोरदार मारा साथे થઈ જાય। રાહુલ ગાંધી ખૂબ લાંબા સમયથી આપણે રાહ જોતા હતા। વચ્ચે એક કોન્ફરન્સ પણ એટેન્ડ કરીને રાહુલ ગાંધીજી આપણી વચ્ચે આવ્યા છે। આપણે એમનું જ માર્ગદર્શન લેવાનું છે। આપણે તો વાતો કરતા રહી છે ને કરતા રહીશું। मैं गुजारिश करूंगा हमारे जन नेता, मैं जन नेता इसलिए कह रहा हूं, कल देखा ना आपने, जमीन पे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच सीढ़ी पे बैठ के अगल बगल में सारे कार्यकर्ता है फोटो खिंचाए, वो जन नेता है। बाकी तो हमने वो भी देखा है 56 इंच का सीना पर, अगर परिंदा भी पर काट ले तो डर जाते हैं, वो नहीं है। ये नेता होते हैं कि लोगों के बीच प्यार से निकलते हैं। मणिपुर में भी जाके कभी डरे नहीं, और मणिपुर में जाके हमारी बहनों के आंसू पहुंचने वाले। आज महिला दिन है और मैं राहुल गांधी जी हमारे बीच है, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। ये दूसरा मौका है। एक साल पहले भी जब महिला दिन था तो आदिवासी महिलाओं के बीच में दाहोद में आपने केक काटी थी, और वही आज भी महिला दिन है। तो सारे गुजरात की बेटियों की ओर से, माताओं की ओर से आपका धन्यवाद करते हुए एक बार हम जोर से बोलेंगे, राहुल गांधी। अब हम कहेंगे, हम संघर्ष करेंगे, राहुल गांधी हमारे साथ है। हमें उनको सिर्फ नहीं कहना है कि राहुल गांधी संघर्ष करो, हम साथ है। मैं कहूंगा हम संघर्ष करेंगे, आप कहोगे राहुल गांधी हमारे साथ है। ठीक है, हम संघर्ष करेंगे, हम संघर्ष करेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं हमारे जन नेता राहुल गांधी जी को कि आइए और संबोधित कीजिए। मुकुल वासनिक जी, अच्छा मुकुल वासनिक जी, मुकुल वासनिक जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, अमित चावड़ा जी, जगदीश ठाकुर जी, भारत भाई सोलंकी जी, सिद्धार्थ पटेल जी, शैलेश परमार जी, हिम्मत सिंह जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, गुजरात की जो जनता है, आप सबको यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कल मैं यहां आया और सीनियर लीडर्स से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, ब्लॉक प्रेसिडेंट से मेरी मुलाकात हुई। मेरा लक्ष्य था कि जो आपके दिल में बात है, जो आपके दिल में दर्द है, उसे मैं समझूं
उसे मैं सुनूं। बहुत बातें निकली संगठन के बारे में, गुजरात की राजनीति के बारे में, जो यहां की सरकार है वो किस प्रकार से काम करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, उसके बारे में। और मैं अच्छी तरह आपकी बात सुन रहा था। और मेरे दिमाग में एक सवाल था, एक सवाल उठा कि मेरी और कांग्रेस पार्टी की गुजरात में क्या जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं यहां आया हूं सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं आया हूं, मैं गुजरात के युवाओं के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए, जो मेरी बहनें हैं उनके लिए आया हूं। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मेरी और कांग्रेस पार्टी की क्या जिम्मेदारी है। अब तकरीबन 30 साल हो गए हम यहां सरकार में नहीं हैं, और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017 चुनाव पे होता है, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। और सचमुच में हमें गुजरात की जनता से यह मांगना भी नहीं चाहिए कि आप हमें सरकार दीजिए, जब तक हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैंने कांग्रेस पार्टी की बोली और अपनी बोली। मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? जब कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों का सामना करना पड़ रहा था, हम सब जगह नेतृत्व को ढूंढ रहे थे। अंग्रेज हमारे सामने थे, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जनता को रिप्रेजेंट करती थी, मगर हमारा कोई लीडर नहीं था। लीडर कहां से आया? लीडर साउथ अफ्रीका से आया।
कौन थे? महात्मा गांधी थे। और किसने हमें दिए? साउथ अफ्रीका ने नहीं दिया। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया। और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। गांधी जी के बिना कांग्रेस पार्टी देश को आजादी नहीं दिलवा पाती, और गुजरात के बिना गांधी जी नहीं होते। सीधी सी बात है। तो अगर हमें रास्ता दिखा, हमारे संगठन को रास्ता दिखा, हिंदुस्तान को रास्ता दिखा, तो गुजरात ने रास्ता दिखाया था। और उनके एक कदम पीछे आपने हमें सरदार पटेल दीजिए। तो हमारे जो सबसे बड़े नेता थे, पांच जो सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, उसमें से 2 गुजरात ने हमें दिए। गुजरात हमसे यही मांग रही है। गुजरात फंसा हुआ है। गुजरात को रास्ता नहीं दिख रहा है। गुजरात रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं और मैं स्टेट से कह रहा हूं कि गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पा रही है। और मैं शर्मा कर नहीं बोल रहा हूं, मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। और हमें ये सबसे पहले, अगर हम गुजरात की जनता को रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें ये साफ कहना पड़ेगा कि आज तक जो पिछले 15, 20, 30 साल जो गुजरात की एक्सपेक्टेशन हमारे से थी, मुझसे थी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से थी, हमारे इंचार्ज से थी, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। पहले ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं बोलेंगे तो हमारा गुजरात की जनता से कभी रिश्ता नहीं बनेगा। और मैं यहां गुजरात के युवाओं से रिश्ता बनाने आया हूं। अब सवाल उठता है, क्यों? और उसका जवाब है कि गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें 2 तरीके के लोग हैं।
डिवीजन है, डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर दो टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है, और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन दो को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। गुजरात की जनता, गुजरात के व्यापारी, गुजरात के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर, गुजरात के स्टूडेंट्स ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी ये दो जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बबरशेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बबरशेर बंधे हुए हैं सब। एक बार मेरी मीटिंग हो रही थी, वहां पे शायद मध्य प्रदेश का डेलीगेशन था। एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कहता है राहुल जी आप एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कहता है दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। अब गुजरात की जनता देख रही है, गुजरात की जनता देख रही है, कह रही है भैया कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें दो काम करने हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप्स हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। और जैसे ही, मतलब अगर हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो,
ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, सीनियर लीडर हो, तो यहां पे कांग्रेस होनी चाहिए, दिल में कांग्रेस होनी चाहिए। जीतने हारने की बात छोड़ दो, अभी जीतने हारने की बात छोड़ दो। बस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। पहला काम यह है। और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। और हमें गुजरात को अब चुनाव के बारे में बात नहीं करनी। यह हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, यह हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। और अब हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें दी, आपके बिना कांग्रेस की विचारधारा होती नहीं। तो जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। मैंने कहा कि गुजरात फंसा हुआ है। गुजरात की बैकबोन क्या है? गुजरात की बैकबोन छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। वो खत्म हो गए हैं। आप डायमंड इंडस्ट्री को देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखिए, सिरेमिक्स इंडस्ट्री को देखिए। गुजरात के किसानों को देखिए, ये चिल्लाकर कह रहे हैं कि हमें एक नया विजन चाहिए। ये जो विजन 20-25 साल से चल रहा है, ये फेल हो गया है, हमें एक नया विजन दीजिए। और कांग्रेस पार्टी बहुत आसानी से ये विजन दे सकती है, मगर उस दिन तक नहीं दे पाएगी जब तक ये 2 तरीके के जो लोग हैं, इनको छाना नहीं जाएगा। तो ये मैं आपसे कहने आया था कि जनता से जुड़ने की जरूरत है। हमने भारत जोड़ो यात्रा में दिखाया कि कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने दिखाया कि कांग्रेस पार्टी जनता के साथ आसानी से जुड़ सकती है और देश की पॉलिटिक्स बदल गई। हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, हमारे नेताओं को गुजरात की जनता के बीच में, घर में जाना पड़ेगा। उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। आप हमसे चाहते क्या हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजनेस के लिए, भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। हम सुनने आए हैं, भाषण देने नहीं आए हैं, नारे लगाने नहीं आए हैं। हम सुनने आए हैं। जो आपके दिल में है आप हमें बताइए, यह पहले करना पड़ेगा। और ये आसानी से, मैं आपको कह रहा हूं, आसानी से किया जा सकता है। आप एक बात याद रखिए, मैं अभी कह रहा था गाड़ी में
विपक्ष के पास गुजरात में 40% वोट है। छोटा विपक्ष नहीं है, यह नहीं है कि 5% वोट है। आप दोनों आइए, आगे सामने आइए, आप दोनों आइए, यहां खड़े होइए। अगर गुजरात में आप कहीं भी ऐसे दो लोगों को खड़ा कर दोगे, एक बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है, आप किसी भी दो लोगों को चुनो, कहीं भी बैठ जाइए, कहीं भी गुजरात के किसी भी कोने में 40% हमारे हैं। मतलब दो में से एक हमारा, एक उनका। मगर हमारी माइंड में है कि भैया कांग्रेस पार्टी के पास दम नहीं है। अगर हमारा वोट 5% बढ़ जाए, बात वहीं खत्म हो जाएगी। तेलंगाना में 22% वोट बढ़ाया हमने, 22% वोट बढ़ाया हमने तेलंगाना में। यहां 5% की जरूरत है। मगर छाने बिना 5% नहीं मिल सकता। तो यह मैं आपसे कहने आया था, जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में ले जाना चाहते हो, जहां भी, सूरत हो, अहमदाबाद हो, खेड़ा हो, कच्छ हो, जहां भी ले जाना चाहते हो, मुझे बताओ। मैं गुजरात को समझना चाहता हूं, मैं गुजरात की जनता से रिश्ता बनाना चाहता हूं। आप सब हमारे सिपाही हो। मैं जब कहता हूं कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर, ऐसे नहीं कहता हूं, बट हमारा जो बब्बर शेर है वो थोड़ी कॉन्फिडेंस खो चुका नहीं है। नहीं, देखो, कॉन्फिडेंस कोई खोता नहीं है। कॉन्फिडेंस अंदर होती है, उसको निकालना पड़ता है। मेरा काम आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको निकालने का है, वो खोई नहीं है, वो है अंदर। गुजरात का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके दिल के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। शर्त यह है कि कॉन्फिडेंस बाहर आई है या नहीं। तो यह मेरा काम है, यह मेरी जिम्मेदारी है, और मैं इस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रॉब्लम आती है गुजरात में, एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं थोड़ा अपना वेट कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं जब भी मैं यहां आता हूं। पता नहीं आप लोग क्या करते हो, किसी रेस्टोरेंट पे ले जाते हो, कहीं मतलब स्नैक्स डाल देते हो, कहीं मेरा 1 किलो ऐसे ही बढ़ जाता है वेट। तो आप सबको, गुजरात की जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद। जय हिंद। આપણે બધા પોતાની જગ્યાએથી ઊભા થઈને, બધા પોતપોતાની જગ્યાએ ઊભા થઈને તાળીઓના ગગડાટથી રાહુલજી આ ગુજરાતની પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધી ને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ભૂમિ ઉપર અમદાવાદ શહેરમાં જ્યારે પધાર્યા છે, ત્યારે એમનું સમગ્ર ગુજરાત વતી, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ વતી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને આભાર માનું છું કે ગઈકાલથી લઈને આજ એમને સતત 24 કલાક સુધી કોંગ્રેસના તમામ કાર્યકર્તાઓનો અભિવાદન ઝીલ્યો છે, બધાને સાથે મળ્યા છે, ચર્ચા વિચારણા કરી છે। और राहुल जी, मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं गुजरात कांग्रेस की ओर से, आज जो आपने यहां जो आवाज उठाई है, उस आवाज को हम बुलंदी पर ले जाएंगे। हम हमारी जान न्यौछावर करके आपकी बात को
कांग्रेस की बात को या मजबूताई से आगे बढ़ाएंगे, ये कांग्रेस पार्टी आपको वादा करती है। आपका बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। હવે રાહુલજી જ્યારે અહીંયાથી પ્રસ્થાન કરે પછી જમણા હાથે સંયમપૂર્વક અમદાવાદના લોકો અહીંયા જ બેસે।